Good morning students, welcome you on your English class, online class, and today's topic is determiners. It is the second video based on this topic. ये आपकी second video है जो determiners पर based है. In first video, in yesterday video, I have explained you about the difference between adjectives and determiners, and I have explained you about the kinds of determiners. There are total 6 kinds of a determiner. First, article, second, demonstrative, third, possessive, distributive, quantifiers, and last, interrogatives. I have also told you about the uses of article. For example, a and the are used in article, demonstrative, this, that, these and those. Possessives, my, our, your, his, her, etc. are used in possessive determiners, and distributives, either, neither, each, every. These are used in distributive determiners. Quantifiers, for example, some, any, many, much, more, several, etc. are used in quantifiers, and in interrogatives determiners. In interrogative determiners we use what, which, why, where, etc. So these are the introduction of the kinds of determiners. Let's start today's topic from the first kind of determiner, article. I will explain you in this video about articles. So let's start today's topic from articles. As we know, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. You already know that there are 3 articles in English. You have already known about the articles. There are 3 articles in English grammar. There are 3 articles in English grammar. थ्री आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में. विच वन? ये कौन कौन से होते हैं? ए एंड द. These are 3 articles in English grammar. Of these, a and are indefinite articles. अब इसमें भी बेटा 2 kinds होती हैं, definite and indefinite. आर्टिकल्स में भी 2 kinds होती हैं. एक होती है डेफिनेट और सेकंड होती है इनडेफिनेट. Indefinite we use the, and indefinite we use a and. Definite में हम यूज करते हैं the का, और indefinite में हम यूज करते हैं किसका? a और and का. For example, a worker, a table. These are indefinite articles. The right answer, this article is definite, and a article is indefinite. ये जो दा है वो हमारा डेफिनेट होता है, और ए और एन हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. द मूवी, एन ऑरेंज, एन एल.
जो द का यूज आप कर रहे हैं वो डेफिनेट आर्टिकल में करेंगे, और जो आप ए और एन का यूज कर रहे हैं वो किसमें करेंगे, इंडेफिनेट में। तो ये किस तरीके से, ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे यूज ए और एन का, हाउ वी यूज ए एंड एन। We use A and N before. We use A and N before countables in the singular number. Before countables in singular नंबर। हम ए और एन का यूज किससे पहले करते हैं, काउंटेबल से पहले करते हैं एक सिंगुलर नंबर में। मीन्स यहाँ पर हमारा जो काउंटेबल नाउन आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन, अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, एन अम्ब्रेला, एन एक्सपेरिमेंट, एन 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, सॉरी, एन FIR। तो इस तरीके से हम सिंगुलर नंबर्स के साथ ए और एन का यूज करते हैं। सेकंड है वी यूज ए बिफोर अ काउंटेबल। वी यूज ए बिफोर अ काउंटेबल, बिफोर अ काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर, in the singular number, in the singular number beginning with a consonant sound। जहां पर हमारा consonant sound होगा, beginning with a consonant sound। जहां पर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहीं पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और किसके साथ करेंगे, एक काउंटेबल सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे जो हमारा किससे बिगिन हो रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड से। फॉर एग्जांपल ए 1 रुपी नोट। यहाँ पर देखिए बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो 1 है, इसमें जो साउंड निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, W का, 1। अगर आप हिंदी में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1। जो हमारा क्या है, वॉवल्स नहीं है, लेकिन इसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है। इसका साउंड जो निकल रहा है कैसा निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है। इससे पहले हमने इसका यूज किया, ए का यूज किया। एज वी नो इन स्मॉल क्लासेस, in 5th till 5th class you always learned about before a vowel we use n। vowel से पहले हम क्या लगा देते हैं, n लगा देते हैं। और आपने इन स्मॉल क्लासेस सीखा था कि जो vowels होते हैं वो 5 होते हैं, a, e, i, o, u। ये आपने स्मॉल क्लासेस में सीखा हुआ था अपनी जो लास्ट क्लासेस हैं उसमें। लेकिन अब यहाँ पर आपको साउंड के लिए भी सीखना होगा। इसके साथ साथ हमें साउंड भी देखना होता है कि हमारा जो नंबर है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसके साथ साउंड कैसा निकल रहा है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का। फॉर एग्जाम्पल ए यूरोपियन,
बॉबल साउंड है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एन का यूज। We use n before a countable in singular number. We use n before a countable in singular number. We use n before countable in singular number. हम n का यूज काउंटेबल से पहले करते हैं सिंगुलर नंबर में, बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। लेकिन जो बिगिनिंग होनी चाहिए सिंगुलर नंबर की तो किससे होनी चाहिए, वोवल साउंड से। बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। अगर हमारी बिगिनिंग वोवल साउंड से हो रही है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। अब आपने यहाँ पर बेटा एन का यूज किया, लेकिन ये जो साउंड है इसमें वो किसका निकल रहा है, वोवल साउंड है ना, वोवल का साउंड निकला है आर्टिस्ट। ए साउंड है, वोवल साउंड हुआ, इसलिए आपने यहाँ किसका यूज किया, एन का यूज किया। लेकिन अगर आप वोवल्स में देखें जो मेन 5 वोवल्स होते हैं वहां पर भी ए ई आई ओ यू का यूज होता है, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वोवल्स। नेक्स्ट एन इंस्ट्रूमेंट्स, एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो आई है इसमें भी किसका साउंड है, वोवल साउंड है। ये जो वर्ड्स हैं जो बिगिन हो रहे हैं वो वोवल साउंड से हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया, एन का यूज किया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर आपने जो हमारा बिगिनिंग हो रही है एच ओ एन ई एच टी, यहाँ पर एच साइलेंट रहता है और हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो साउंड निकलेगी वो किसकी निकलेगी, ऑनेस्ट, ओ की साउंड निकल रही है, इसलिए हमने इसके यहाँ पर किसका यूज किया, एन का यूज किया। इसलिए यहाँ पर किसका यूज होता है बेटा, हमेशा ऑनेस्ट से पहले एन का यूज होता है, क्योंकि इसमें जो साउंड होती है वो किसकी साउंड होती है, वोवल की साउंड होती है। तो वोवल साउंड से पहले आप एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा ए और एन के यूज में कि हमेशा याद रखिएगा अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप उसमें ए का यूज कीजिए और वोवल साउंड है तो उसमें एन का यूज कीजिए। नेक्स्ट है नोट द यूज ऑफ ए इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जैसे कि a pity, a shame, a pleasure, a noise। नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम कैसे कैसे कहाँ करते हैं, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल एज यू नो ऑलरेडी अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल। द इज द डेफिनेट आर्टिकल। जो द होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। वी हैव टू यूज इट बिफोर नाउन, और इसका यूज हमें किससे पहले करना होता है, नाउन से पहले। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, इसका यूज नाउन से पहले किया जाता है। नेक्स्ट है वी मेक इट पार्टिकुलर, लेकिन इसका यूज करने से जो हमारे नाउन्स हैं वो क्या बन जाते हैं, पार्टिकुलर बन जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन दैट आई रिसीव। इंफॉर्मेशन यहाँ
इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, द इंफॉर्मेशन जो मैंने रिसीव की, उस सूचना के बारे में जो मैंने रिसीव की। द गर्ल whom I saw। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात हो रही है, उस लड़की के बारे में बात हो रही है जो मैंने देखी। द गर्ल whom I saw, लड़की जो मैंने देखी। तो यहाँ पर द का यूज करने से जो हमारा नाउन है वो क्या बन जाता है, पार्टिकुलर बन जाता है। नेक्स्ट वी यूज द विद अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। We use the with a noun, the with a noun that has been already mentioned। For example, I got a camera and a watch। I got a camera। I got a camera as birthday presents। I got a camera and a watch as a birthday gift। The watch is very beautiful। The watch is very beautiful and the camera is expensive। अब यहाँ पर देखिए ये चीज हमारी क्या हो गई, ऑलरेडी मेंशन्ड है कि बर्थडे गिफ्ट में मुझे कैमरा मिला और वॉच मिली, जिसमें मेरी जो वॉच है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और कैमरा जो है वो कैसा है, एक्सपेंसिव है। तो इस तरीके से हमने देखा कि द का यूज हम कैसे करते हैं। नाउ थैंक यू फॉर टुडे। As you know, article is the part of determiner and it is the first part of determiners. You have already studied about articles in your previous classes. As you know, articles are only three in our English grammar: a, an and the. Now, article are two types, definite and indefinite. For the definite article we use the, and for the indefinite article we use a or an. So we can say that the is the definite article and a or an are indefinite articles. There are some rules for using the definite article and indefinite article a or an. So in this video I have explained you about the uses of definite and indefinite article. Now from the chart we have studied about the two types of article, and there are the main two types, definite and indefinite. So let's start our new topic for article, the uses of. A must be used before words with which begin with a vowel symbol pronounced with the same sound as the Y or W, like sound. Example: a euro, a unicycle, a university, etc. Beta, you can see some rules for using articles a or an. There are total 12 rules for using articles. So according to the first rule, a must be used before words which begin with a vowel symbol pronounced with the same sound as by or w. Means
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो वोवल साउंड होता है वो वाई और डब्लू होता है, लाइक साउंड्स एग्जाम्पल अ यूरो, अ यूनिसाइकिल, अ यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. Now according to the second rule, sometimes n is found before words. N is found before words beginning with letter H. For example, an hour, an honor, an hair. कभी कभी ऐसा होता है कि n is found मतलब n का यूज़ हम करते हैं उन लेटर्स के साथ जो h से स्टार्टिंग होती है, h. फॉर एग्जाम्पल एन आवर, एन ऑनर, एन हेयर एक्सेट्रा. According to the rule number 3, we use n before abbreviation that begin with the vowel sound. For example, an MA, an MSc, an MBBS. Now, according to the rule number 4, a or n must be used before a singular noun. a और n का जो यूज़ है वो सिंगुलर नाउन से पहले किया जाना चाहिए. स्टैंडिंग फॉर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, और ऐसी चीज़ों के लिए जो हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, अ बोटल, एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू हियर माई वॉइस क्लियर and you understand what is explained by me for you. If you have any query, then ask me on my number. Now according to the rule number 5, a और n must be used before the names of professions. जो हमारे प्रोफेशंस होते हैं उनके नेम से पहले भी बेटा a और n का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल अ डायरेक्टर, एन एडिटर, अ टीचर. Now next number 6, when you mean a typical example, use a or n. For example, a cat drinks milk. According to the rule of 7, according such plus an plus noun or such plus an plus adjective means कभी कभी ऐसे रूल भी होते हैं कि सच का यूज़ हो रहा है और ए या एन में से किसी एक आर्टिकल का यूज़ है, उसके साथ कोई नाउन है. तो ऐसा रूल कभी कभार आपको देखने को मिलता है. कभी कभी ऐसा भी होता है सच यूज़ हुआ है प्लस ए या एन आर्टिकल में से एक है, प्लस एडजेक्टिव है और प्लस नाउन भी है. ऐसा रेयर केसेस में होता है. फॉर एग्जाम्पल सच अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ ग्रेट टीचर. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 8, the following word has an indefinite article, so plus adjective plus an plus noun. For example, so boring a book, so beautiful an actress. Now number 9, few and little are negative in meaning. जो यूज़ है बेटा डिटरमाइनर्स में few और little, ये फ्यू और लिटिल का यूज़ है, ये नेगेटिव सेंस में होता है. लेकिन आ फ्यू एंड आ लिटिल आर पॉजिटिव एंड मीन सम. आ फ्यू और एंड आ लिटिल का यूज़ पॉजिटिव वे में होता है और इसका मीन्स होता है कि थोड़ा है, थोड़ा सा है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ यंग एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. इट मीन्स वो अभी युवा है. एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मीन्स उसे अभी जीवन का कोई भी अनुभव नहीं है. तो ये लिटिल एक्सपीरियंस का मीन्स क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है. यहाँ पर अगर होता अ लिटिल एक्सपीरियंस तो हो जाता उसे जीवन का कुछ अनुभव है, बट देयर इज़ यूज ओनली लिटिल. आ लिटिल का यूज़ नहीं हुआ है, केवल लिटिल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मीन्स नेगेटिव में जाएगा. नाउ in its original numerical sense of 1, not a word was said. And next example, 12 inches make a foot. 12 इंच से क्या बनता है, एक फुट बनता है. Now according to 11, a n is equal to one thing or a person. a और n का यूज़ या तो एक थिंग के लिए होगा या एक पर्सन के लिए होगा. For example, she works in a hospital. I have got a puppy. Now in the last, according to 12 rules, we use a and n when we say what a thing or a person is. हम a और n का यूज़ जब करते हैं
जब हम एक पर्सन या एक थिंग के लिए बताते हैं कि वो कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल. सो नाउ बेटा, I explained you the rules for using articles a and a or n. Now in a geographical names, अब यहाँ पर बेटा जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज़ इन जोग्राफिकल नेम्स के साथ होता है, जैसे कि पॉइंट्स ऑफ कंपास, यूनियंस ऑफ कंट्रीज स्टेट्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, सीज, gulfs, group of lakes, rivers, canals and channels, poles, republics, continents, group of mountains, oceans and deserts. So these are some geographical names for which we use the article which is definite. So you can understand by this map. Now beta, I hope you understand about the uses of article a and the. Beta, always remember these names that are shown in the geographical names. For example, I show you a table. हमेशा याद रखिएगा कि ये जो टेबल में नेम्स दे रखे हैं, इनके साथ हमेशा आपको डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिवर्स के नेम है, तो आप रिवर्स के नेम के लिए यूज़ करते हैं द का, द गंगा, द यमुना, तो यहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे. ऐसे ही पॉइंट्स ऑफ कंपास है ना, यूनियंस ऑफ कंट्रीज़ एंड स्टेट्स, डेजर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. So always remember these points. Thank you for today, and that was all that I have explained you about articles. Beta, mention these notes on your fair notebook. I send you the chart and pic of these charts on your school group. Thank you for today and meet in next video.